Good morning, student. Am I Good audible? morning, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay, so what we discussed in last lecture? A general solution of using LT, Laplace transform. Differential equation. Solution of the differential equation using Laplace transform. Very good. Okay, so how many steps for the solution of the example? 4 steps, sir. Two steps. Step number one is Laplace transform both side. Apply Laplace transform both apply side. Laplace transform both the sides. Then step number two. Convert expression into y bar s is equal Yes, to very L. good. Convert expression into y bar s is equal to something. Okay, that means only y bar s in left hand side. Okay, then step number three, Apply inverse both the side. apply inverse Laplace transform. Very good. And step number four, Find y of t. find your solution y of t is equal to something. Okay, that is the steps for the solution of the differential equation using Laplace transform. So you can see here 4 steps are mentioned. Then we done many examples for that. Okay, so yes. Okay, now I give this example in homework. Have you tried for that? Anybody try for this? आई थिंक नो, है ना, नहीं किया ना ट्राई। तो चलो यहाँ पे क्विकली करते हैं, यस और नो तो बताओ। No, sir. सो यू कैन सी हियर स्टेप नंबर वन इज अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म both sides. Okay, so what we get here, Laplace transform d square y by dt square plus 2 Laplace transform dy by dt plus 5 Laplace transform y is equal to Laplace transform e raised to minus t into sin t. Okay, so that is your step number one. Now write down the formula for the Laplace transform d square y by dt square. What is it? Anybody have any idea? Yes, s square, very good. S square Laplace transform y of t, yes, f of t नहीं यहाँ पे, y of t, then minus s y of 0 minus y dash 0. Okay, that is the formula for the first one. First term जो है उसकी फॉर्मूला है ये. ओके, देन प्लस 2 times. Now write down the Laplace transform dy by dt. What is it? S into Laplace transform y of t minus क्या हो जाएगा y of 0 एंड थर्ड वन नहीं आएगा, इसमें दो ही स्टेप आएंगे. ओके, देन प्लस 5 Laplace transform y is nothing but our y of t is equal to, now tell me the Laplace transform e raised to minus t into sin t. चलो इसका बताओ क्या होगा. एनीबडी, which property is applied here? Sir, AB. यस, वेरी गुड. दैट मीन्स यहाँ पे ऑफलाइन में एक बच्चे ने ऐसे बताया 1/s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1. दिस वन. ओके, सो इज इट ओके? सर ये कैसे आया? यस, ये कैसे आया है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल किए फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए. तो e रेस टू माइनस 80 है, तो हमको क्या करना था, अगर इफ यू रिमेंबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेस टू माइनस t इंटू साइन t है, तो द प्रॉपर्टी टेल्स अस और सेज अस लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन t जो भी होता है उसमें s की जगह पे s माइनस a, बट माई a इज
-1. Okay, so here s minus -1, so it is nothing but the s plus 1. Okay, so you have to write down s is replaced by s plus 1 in the Laplace transform of sin t. Now what is the Laplace transform of sin t? 1 upon s square plus 1. ओके, अब इसमें मुझे रिप्लेस करना है s टेंड्स टू s plus 1. नाउ रिप्लेस s बाय s plus 1. सो 1 upon s plus 1 whole square plus 1. That is the Laplace transform of this one. Okay, everybody, now understand? Yes. Yes, sir. Okay, so this one is s plus 1 whole square plus 1. Okay, now next is replace the value of the Laplace transform of y of t, y of 0, y dash 0. ये आपको दे दिया है, देखो y of 0 का क्या वैल्यू है? What is the value of y of 0? 0. Okay, so this equal to 0. Now y dash 0, 1. So this is equal to 1. And this is also 0. है ना? Okay. Now replace Laplace transform of y of t by y bar s. Okay, जहां पर भी Laplace transform y of t है उसको y bar s बोलेंगे. So s square into y bar s माइनस, ये तो 0 हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे +2 टाइम्स s into y bar s plus 5 times y bar s is equal to this one, 1 upon s plus 1 whole square plus 1. Now next one is combine the y bar s terms, that means s square plus 2s plus 5 into y bar s. Now move this -1 into right side. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 upon s plus 1 whole square plus 1 plus 1. Is it okay up to here, everybody? Yes, sir. Now take a LCM in right side. So here 1 plus हो जाएगा s plus 1 whole square plus 1 divide by s plus 1 whole square plus 1. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now my step number 2 is convert this into the y bar s into something. So you can see here I convert this into the y bar s is equal to something in this way. s, sorry, yes, इसको ओपन करो. तो चलो इसको ओपन करते हैं. पहले इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1 है ना, 2 हो जाएगा. एंड यहां से ये तो आ ही रहा है s square plus 2s plus 5. Okay, now here if you open this one, then s square plus 2s plus 1 plus 1 plus 1, that means total is 3. 3. Yes, 3. So s square plus 2s plus 3. Now how we can arrange this one? मीन्स इसको अब इनवर्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? सर स्प्लिट कर देंगे दोनों को. स्प्लिट करेंगे, लेकिन कैसे स्प्लिट करेंगे? कैसे स्प्लिट करेंगे? एनीबॉडी? सर s square upon s square plus 2s plus 2 s square plus 2s plus 5 plus 2s s square plus 2s plus 2 ऐसा करके. ऐसे करके कर सकते हैं हम. देखो यहाँ मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ट्राई एंड एरर. ओके, अगर आपको पता चल जाता है तो ठीक है. चलो नीचे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देना, तो अभी मतलब क्वाड्रेटिक का ही कुछ करना पड़ेगा, बाकी सबका मिल जाएगा. क्या करे तो क्वाड्रेटिक, नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो ये बहुत केस 3 आएगा सर. ये सिंपल है. देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मुझे 2 है, यहाँ पे 5 है ना, तो 2 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा. तो यहाँ पे देखो मैं सिर्फ पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ जो भी मुझे चाहिए हो. देखना यहाँ पे s square plus 2s plus 5. ओके,
माइनस करके लिख देता हूं एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ओके, हो सकता है ना ऐसे? यस और नो? yes sir, ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कर देंगे तो 0 चाहिए, लेकिन यहाँ तो एस स्क्वायर अवेलेबल है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको? नहीं, देखो यहाँ हमने एक गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया यहाँ पे देखो, इसका अगर हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करने जाएंगे तो आपको 4 कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उससे एक शॉर्टकट है। देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे अभी मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे देखना, इसको मैंने निकाल दिया। इस तरीके से भी मिलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें थोड़ी देर लगेगी। लेकिन जिस हिसाब से मैं अभी करने जा रहा हूं उससे आपको जल्दी मिल जाएगा। लुक एट हियर, देखो मैं ये दोनों को क्लब नहीं कर रहा हूं, ओके, क्लब नहीं कर रहा हूं। तो क्लब किए बिना क्या होता है, इट विल वेरी इजी फॉर अस। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन यहाँ पे s प्लस 1 होल स्क्वायर था प्लस 1 इंटू यहाँ से ये आ जाएगा, सो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 एंड प्लस 1 अपॉन वाला एज इट इज रख रहा हूं, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। कैन वी डू इन दिस वे? yes sir, ओके, नाउ Sir, यस, बोलो बोलो sir, बोलो। there in RHS it will be 1 upon s minus 1 whole square plus 1, no? यस, प्लस 1 आया ना, यहां से आया ना, दिस वन इज प्लस 1, वहां जाएगा तो प्लस 1 होगा ना। Sir, no. In LHS 1 upon s minus 1 whole square, no? RHS Yes, RHS. s माइनस 1 होल स्क्वायर कहाँ है बेटा? इट इज नॉट देयर। s प्लस 1 होल स्क्वायर किया ना हमने करेक्शन तो किया। एक स्टूडेंट ने पहले हमको ऐसे बताया था 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, बट वी डिराइव दैट दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं फिर से, सो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एंड दिस वन इज s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब देखो इसमें जल्दी मिल जाएगा, सो 1 अपॉन यहाँ पर है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। नाउ यू कैन सेट और रीअरेंज हियर इजीली, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 माइनस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, तो ऊपर कितना बचेगा? 3 बचेगा ना ऊपर। यस और नो एवरीबॉडी? ऑनलाइन में इज इट ओके? ऊपर Yes, 3 sir. बचेगा, है ना। अब 3 बचा, लेकिन आई वांट ओनली 1। यस और नो? मुझे by तो 1 3. ही चाहिए ना, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो अब दिस इक्वल टू दिस हो गया कि नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस स्टेप? प्लीज कंफर्म योरसेल्फ। पता चला कि नहीं मुझे बताओ पहले, देन वी गो Sir, फर्दर। can you यस, चलो रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे रीअरेंजमेंट करना था, क्योंकि आई डोंट गो विद द पार्शियल फ्रैक्शन बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन इज लेंथी प्रोसेस फॉर दिस एग्जांपल। सो आई हैव 2 फैक्टर हियर, सो आई थिंक अबाउट द सब्सट्रैक्शन ऑफ दैट 2 फैक्टर। तो मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया। इज इट ओके अप टू हियर? yes sir, अब यहाँ पे देखो s स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2s कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 होके 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे 1 ही चाहिए ना। प्रीवियस स्टेप में मेरा 1 है, तो वो 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा, तब जाके 1 हो जाएगा, yes sir, understood, है ना। सो नाउ गॉट इट? सर ये ऊपर yes, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 वो कैसे आएगा? एस स्क्वायर प्लस 2s 2 प्लस 5 माइनस के बाद जो टर्म है ना, हाँ, वो टर्म सर कैसे आएगा? एक बार वापस समझाओ ना। इसमें रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। ओके, चलो मुझे बचपन में ले जाना पड़ेगा। तो फिर आपको, आप बचपन में क्या करते थे, यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, आपके पास 1 अपॉन a इंटू बी था, तो व्हाट यू डू, a माइनस बी अपॉन a इंटू बी करते थे कि नहीं, या फिर b माइनस है, जो भी आपको एडजस्टमेंट होता था, है ना। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आप क्या लिख देते थे, यहाँ पे हमारे केस में हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन
a. Yes or no? Do you remember this one? Yes, sir. So वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. यहाँ पे मेरा a है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, मेरा b है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5. ओके, नाउ इज इट ओके? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या होगा देखो यार एवरीबडी. सो 1/3 इज एज इट इज. नाउ हियर 1 अपॉन a अपॉन दिस वन हो जाएगा पूरा. तो ये s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा वहां पे. सो वी हैव ओनली s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. ये दोनों कैंसिल होके अब आएंगे 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5. यस और नो? Yes, sir. S square plus 2s 5 last term is as it is. Now you can see here I multiply 1/3 to both. So 1/3 s square plus 2s plus 2 minus 1/3 s square plus 2s plus 5 and plus 1 upon s square plus 2s plus 5. Now I want to club these two. है ना? ये दोनों को मुझे क्लब करना है. How we can do it? क्या हो जाएगा? 1/3 minus 1/3 plus 1. 1/3 s square plus 2s plus 2 minus, sorry प्लस कर देता हूँ, 1 minus 1/3 divide by s square plus 2s plus 5. Everybody yes or no? Yes, sir. So 1 minus 1/3 means 2/3. Everybody? Yes, sir. Okay, so this is nothing but positive 2/3. So 2/3 divided by s square plus 2s plus 5. So we continue with the y bar s, है ना? हमने y bar s से कंटिन्यू किया है पूरा. Yes or no? Yes, sir. So our step number 2 is completed now. Now we go for the step number 3. Apply inverse Laplace transform both sides. Okay, so what we get here? Laplace inverse of y bar s is equal to Laplace inverse of 1/3 divided by s square plus 2s plus 2 plus Laplace inverse of 2/3 divided by s square plus 2s plus 5. Is it okay? Yes, sir. Okay, now how we can find the inverse Laplace of this one? So for that you have to make some adjustment. Okay, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है. सो वी ओनली गो विद द एडजस्टमेंट. वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो 1/3 इज आउटसाइड, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन, हाउ आई कैन राइट दिस वन, जैसे हमने पहले स्प्लिट किया था ऐसे अब हम क्या करेंगे? क्लब करेंगे. यस और नो? Now next one is 2/3 Laplace inverse of 1 upon s plus 1 whole square plus कितना हो जाएगा? 4. Is it okay? Yes, sir. Okay, now here 1/3 is outside. Now what is the inverse Laplace transform of this one? Yes, so this there is a first shifting property here. Okay, तो यहाँ पे first shifting property है, तो first shifting property अगर यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओरिजिनल के लिए सोचेंगे. दैट मीन्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 किसका है? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 साइन ना. सो दिस इज योर साइन t. नाउ s इज रिप्लेस बाय s प्लस 1. So you have to multiply with e raised to minus t. Minus t. That means at, है ना? E raised to at. But here a is minus 1. So e raised to minus t sin t. So this is the inverse Laplace transform of this one. Plus 2/3 as it is. Okay. Now tell me the inverse Laplace transform of this one. चलो इसका बताओ. E raised to 2t. E raised to minus t सिर्फ आएगा ना? Yes, sir. Yes.
and 1 upon s square plus 4 means Sin 2t. sin 2t by 2 आएगा ना, ओके, क्योंकि यहाँ पे Yes 2 sir. नहीं है ना, यहाँ ये 2 हम अंदर रखते तो हो जाता. सो फाइनल आंसर इज 1/3 e raised to minus t sin t plus 2 to cancel out here. So we have e raised to minus t sin 2t divided by 3, and this one is your y of t. Yes or no, everybody? Yes sir. Okay, so which is required solution? Which is required solution? So is there any question, any doubt, anybody? No Yeah, doubt sir. पीछे नहीं ना? Okay. Please confirm yourself, student. No doubt, sir. Okay. So this type of example will ask in your examination. Now I give you one example in homework. Try for this. Okay. Write down this statement. d cube y by dt square plus 2d square y by dt square minus dy by dt minus 2y is equal to 0, where y is equal to 1, dy by dt is equal to 2, d square y by dt square is equal to 2 at t is equal to 0. So what is the meaning of this one? यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंट वे में आपको दिया है. तो यू हैव y of 0 is equal to 1, dy by dt means Y dash of 0. y dash at time t is equal to 0 is equal to 2. Now what is the d square y by dt square? Double dash. Y double dash at 0 is equal to 2. So this is the original statement as per our given data. Okay everybody, इसे डरना नहीं है कि इसे दे दिया है तो सर इसका तो हमने कुछ नहीं किया था. No, you have to read 2 times. Okay, statement 2 times read करना है, then go for the solution. है ना, अंडरस्टैंड करो पहले, देन गो फॉर कैलकुलेशन पार्ट. देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब क्या होगा, क्या आएगा बताओ चलो. एस क्यूब से स्टार्ट होगा, है ना एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो मैं बोल देता हूँ, ये तो 0 ही रहेगा. तो यहाँ क्या होगा, एस क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ 0 माइनस एस वाई डैश 0 माइनस वाई डबल डैश 0. एस क्यूब से स्टार्ट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना है इसका. एस क्यूब एस स्क्वायर एस रेज टू 0, एंड यहाँ पे लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी फिक्स वाई ऑफ 2 नहीं, वो तो पीछे है ना, वो तो स्क्वायर में है, उसका अलग से होगा. एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ टी माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0. ओके, दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर. अब इसके लिए क्या होगा, सो माइनस यहाँ पे आएगा एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ टी एंड माइनस वाई ऑफ 0 हो जाएगा. ओके, एंड यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज नथिंग बट y ऑफ t एंड इक्वल टू 0 इज दैट. सो दिस इज द स्टेप्स आफ्टर अप्लाइंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, Yes sir. ये ट्राई करना, नहीं तो फिर फंस जाएंगे आप. पूछ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है. If you don't find solution, then let me inform. I will give you a solution. Yes, yes, bolo. Any question, beta? Okay, okay. Now we go for the next part of our unit. That is the Laplace transform of some special functions. Okay, so we already know about the Laplace transform
usual function. For example, Laplace transform of 1, Laplace transform of e raised to at, Laplace transform of sin at, Laplace transform of cos at, Laplace transform of t raised to n. Okay, so we already discussed these functions. Okay, Laplace transform of these functions. But what about the special functions? There are two special functions we will discuss in this topic. Number one is the Heaviside unit step function, and number two is the Dirac delta function. Okay, so in this topic we discuss only two special function, and both are very applicable in the circuit theory. Okay, circuit theory में बहुत ज़्यादा इसका use होता है. So Heaviside unit step function. So what is the definition of the Heaviside unit step function? So you can see on your screen, for any positive number a, the Heaviside's unit step function is denoted by u of t minus a. अब तक हम फंक्शन को कैसे देखते थे? f of t, g of t, h of t. Okay, but whenever you see u of t minus a, then you have to remember that this is your unit step function. U for unit, okay, and t minus a is the variable for that. Okay, so u t minus a अगर पेपर में दिखता है तो आपको समझना है कि it is unit step function. Okay everybody, how it defined? So ut minus a means वो unit का jump लगाता है, means 1 to 0 to 1 में वो jump लगा देता है, इसलिए उसको unit step बोलते हैं. u of t minus a is equal to 0 when t less than a and 1 when t greater equal to 1. If you go with the graphical representation, then this is like this. Okay, means this is your a. So t less than a means ये t हम अगर consider करें, and this is your u t minus a अगर consider करें, so t less than a के लिए क्या करना है आपको? 0 लेना है. That means your points will be or value or output will be 0. So ये 0 वाला हो गया केस. Yes or no? But if t greater equal to a means यहाँ से अगर आपको आगे बढ़ना है तो your function jumped with the unit. That means this is your u t minus a is equal to 1. So यहाँ पे this is your the given function. Okay everybody, understand? इसे कंटिन्यू रहेगा जहां तक आप t ले जाना चाहते हो. तो दिस इज द जंपिंग. ओके, यहाँ पे जंप हो रहा है यूनिट लेंथ का, इसलिए उसको बोलते यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड? ऑनलाइन में do you understand the definition of the unit step function? Yes. First? Yes, sir. Okay. So next, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड करते हैं. चलो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन बहुत ही इजी है. सो यहाँ पे देखो, चलो u of t minus a I have. What is the definition? 0 when t less than a and 1 when t greater equal to a. Okay, so whenever you want to find the formula of the Laplace transform, then we go with the usual formula, main formula of the Laplace transform. So we know that here we know that क्या जानते हैं हम? Laplace transform f of t is equal to integration 0 to infinity f of t e raised to minus st dt. That is the main formula of the Laplace. Now here given function is ut minus a, so replace here Laplace transform of ut minus a is equal to integration 0 to infinity ut minus a e raised to minus st dt. Okay everybody, understand? Do you understand? ऑनलाइन में I want confirmation from most of the student. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ऑफलाइन में तो पता चल गया ना सब. Okay, done. Now we go for the next step. Now you can see ut minus a is distributed in two different parts. Okay, 0 and 1. So our integration will be two types. First interval is 0 to a and second interval is a to
इन्फिनिटी, क्योंकि t ग्रेटर इक्वल टू a, लेकिन कितना बड़ा होगा वी डोंट नो, है ना. सो यहाँ पे a टू इन्फिनिटी तक ले जाएंगे. सो यहाँ पे 0 टू a में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ut माइनस a? 0 है ना. t लेस देन a वाला सारा 0. सो 0 इंटू e रेज टू माइनस एस टी dt. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू इन्फिनिटी ut माइनस a का 1. So 1 into e raised to minus st dt. Now this one is 0. Whole integration will be 0, है ना. So यहाँ पे सिर्फ बचा हमारे पास a to infinity e raised to minus st dt. Now integrate this. What is the integration of e raised to minus st with respect to t? E raised to minus st upon minus s. A to infinity is there. So first if you replace infinity, then you have e raised to minus infinity. So what is the value of e raised to minus infinity? 0. So first is your 0 minus, now you are applying the a. So e raised to minus as divided by minus s. So if you open this, then you will get minus minus plus e raised to minus as upon s. Okay, so your new formula is Laplace transform of unit step function is e raised to minus as upon s. Okay, everybody understand? Yes, sir. Okay, now second shifting theorem. हमने जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम स्टडी किया था, इससे ही सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. लुक एट एवरीबॉडी, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा, है ना. तो यहाँ पे देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t is equal to f of s, means we say this is the usual notation, then लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t minus a into ut minus. जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग में हम क्या करते थे, फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल ई रेज टू मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम s की जगह पे s माइनस ए करते थे. लेकिन सेकंड शिफ्टिंग में यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होगा. क्या मल्टीप्लिकेशन में होगा? यूनिट स्टेप फंक्शन. तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t है उसको e रेज टू माइनस as से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो हियर इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देखो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t minus a into ut minus a, क्या करना है आपको, e raised to minus as से मल्टीप्लाई करना है एंड राइट डाउन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल f of t. ओके, मींस f of t minus a का नहीं, किसका यहाँ पे लिखना है आपको, f of t का. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी ऑनलाइन में? Yes, sir. है ना. और इफ यू गो विद द लाप्लास इनवर्स तो पूरा उल्टा हो जाएगा. e रेज टू माइनस as इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t ब्रैकेट में चला जाएगा, एंड जो यहाँ पे ब्रैकेट में था वो बाहर आ जाएगा, f of t माइनस a इनटू ut माइनस a, बिकॉज लाप्लास एंड लाप्लास इनवर्स आर इनवर्स ऑपरेटर. ओके, रिवर्स ऑपरेटर. सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम? No doubts. ऑफलाइन में किसी को पीछे लास्ट वन. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि सेकंड शिफ्टिंग में यू हैव द फंक्शन विद द यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जब भी फंक्शन है तब आपको सेकंड शिफ्टिंग से ही सोचना है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, चलो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. ओके, इससे पहले हम ये एग्जांपल करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. अब मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? फंक्शन. पहले तो a फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, हम a फाइंड करना पड़ेगा ना, t माइनस a क्या है. Yes, sir. ओके, अब a इज इक्वल टू समथिंग, एंड जैसे अभी बताया उन्होंने ऐसे फंक्शन मींस f of t आपको निकालना है. ये दोनों चीज आपके पास आ गई तो योर आंसर इज वेरी इजी. e रेज टू a की जगह पे आपको a रिप्लेस करना है एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t जो भी आपने फाइंड किया है वो लिखना है. तो ये सेकंड शिफ्टिंग का एग्जांपल बहुत इजी है, लेकिन आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो. तो इससे आप ऐसे याद रखो कि जो भी स्टेटमेंट दिया है उसमें से आई हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स, a and f of t. Understand everybody? Got it?
ऑनलाइन में पता चला? अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी गो फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल. देखो अब यहाँ पे फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन. सो सबसे पहले राइट डाउन द गिवन फंक्शन हियर t minus 4 square ut minus 4. Now we want to find the Laplace transform of this one. So let me first इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. किसके साथ? देखो यहाँ पे कंपेयरिंग t minus 4 square ut minus 4 with किसके साथ करेंगे? f of t minus a into ut minus a के साथ. कर सकते हैं कि नहीं? we get what we get. सबसे पहले मुझे मिलेगा a. a कितना मिला? 4. everybody yes or no? Yes, sir. Okay, now tell me what is my f of t minus a? t minus 4 whole square. Where t minus 4 whole square. Okay, so t minus 4 whole square. So if I go with the f of t only, then what should be my function? क्या होगा? 4 t square होगा ना only. A is equal to 0. नो a is equal to 0 नहीं. यहाँ पे देखो t minus 4 की जगह पे मुझे t रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? है ना? यस सर. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी Yes. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, सो नाउ योर एग्जांपल इज वेरी इजी. अगर ये इतना आपने सही तरीके से कर दिया देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. सो बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम सीधा हमको लिखना है. बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यू कैन सी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा. देखो वो आपको याद होना चाहिए. क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. यस और नो? Yes, sir. So therefore our function is t minus 4 whole square into ut minus 4 is equal to e raised to minus as. को a की जगह पे हम 4 रख देंगे तो e raised to minus 4s. okay, then Laplace transform of f of t is my t square. मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है तो सीधा रिप्लेस कर दो. so e raised to minus 4s as it is. now what is the Laplace transform of t square? 2 factorial divided by s raised to 2 plus 1 है ना एवरीबॉडी. t raised to n के फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, n factorial divided by s raised to n plus 1. so e raised to minus 4s into 2 divided by s cube. that is my required Laplace transform. so is there any doubt, any question in this example? anybody? No, sir. कोई भी स्टेप में नहीं पता चला है तो प्लीज आस्क मी. एनी प्रॉब्लम? No doubt, sir. ओके, चलो सेकंड पे चलते हैं. फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन sin 3t minus 1 ut minus 1. सो आई स्टार्ट विद अगेन कंपैरिजन है ना. सो कंपेयरिंग sin 3t minus 1 into ut minus 1 with किसके साथ कंपैरिजन करना है? f of t minus a into ut minus a. so we get what we get? a is equal to कितना मिलेगा? a is equal to चलो बताओ 1 है ना. a is equal to Yes, 1. sir. yes, and f of t minus a T minus sin 3t minus 3t minus 1. now tell me what is my f of t? Sin 3t. very good sin
3t, ओके, क्योंकि t माइनस यहाँ पे a है लेकिन a मेरा 1 है तो t माइनस 1 ही हुआ, तो t माइनस 1 की जगह पे सिर्फ मुझे t रिप्लेस करना था. ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड? Yes, sir. So by second shifting theorem, क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. Okay, now replace our values of a and f of t in this expression. Therefore, Laplace transform of sine 3t minus 1 into ut minus 1 is equal to e raised to minus as. A is equal to 1 है, so e raised to minus s. And Laplace transform of f of t, that is sine 3t. So what is the Laplace transform of sine 3t? 3 upon s square plus 3 square, that is 9. So your final answer is 3 e raised to minus s divided by s square plus 9. Is it okay? Online mein, is it okay everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next one, find the Laplace transform following functions. Okay. अब यहाँ पे आप सीधा कंपैरिजन नहीं कर सकते, कर सकते हो? नो, क्योंकि पहले में t माइनस 2 चाहिए, वो है नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको वहां पे रीअरेंजमेंट करेंगे. तो यहाँ पे देखो सब लोग थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. ये एग्जांपल में e रेज टू टी इंटू यू टी माइनस 2 इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, t माइनस 2 प्लस 2 कर सकता हूँ कि नहीं, e रेज टू, एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना. अब इसको थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 2. नाउ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए. बना दिया मैंने, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes. ओके, सो नाउ वी कैन कंपेयर, दैट मीन्स कंपेयरिंग ई स्क्वायर इंटू जो भी यहाँ पे लिखा है वो पूरा ई रेज टू टी माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 2 विथ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए. सो वी गेट व्हाट वी गेट, चलो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2. वेरी गुड. यस, एफ ऑफ टी माइनस ए, दैट मीन्स एफ ऑफ टी माइनस 2, क्या मिलेगा मुझे, ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी माइनस 2 पूरा, है ना? अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी? T raised or e raised to t minus 2. ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी, है ना? ई रेज टू 2t मत कर देना, दिस इज नथिंग ई रेज टू 2t, है ना? ये ई रेज टू 2t नहीं, ये है ई रेज टू t प्लस 2, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना, डोंट कंबाइन दिस एज ई रेज टू 2t. नाउ वी हैव द बोथ द थिंग्स a and f of t. नाउ वी कैन अप्लाई दिस सेकंड शिफ्टिंग. सो बाय सेकंड शिफ्टिंग थियरम, what is it? Laplace transform f of t minus a into ut minus a is equal to e raised to minus as into Laplace transform f of t. So this is my second shifting. Now replace our values in this one. So क्या होगा देखो, Laplace transform क्या मिलेगा मुझे, क्या दिया था उसी से स्टार्ट करते हैं ना, e raised to t into, yes, e raised to t into ut minus 2, that is given, is equal to e raised to a, that means minus 2s, Laplace transform f of t. What is my f of t? E square into e raised to t. Now e square is constant,
है ना, तो उसको बाहर ले सकते हैं. सो ई स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2s. नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू टी इज दैट. सो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू टी? 1 upon s minus 1, है ना. सो e raised to 2 into e raised to minus 2s divided by s minus 1. Now we can club both these things. ऊपर वाला जो है उसको मर्ज कर सकते हैं, है ना. सो e raised to minus 2s plus 2 divided by s minus 1. That is the required Laplace transform. So is there any doubt, any question in this example? No, sir. You can see on your screen, है ना. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next function is the Dirac delta function, but we discuss it in our next class. Okay. So is there any doubt, any question in today's session? ऑफलाइन में? नो. ओके. ऑनलाइन में? હેલો સર. यस यस. No, sir. સર આના ઉપરનો સમ કરો. ओके. સ્ક્રીનશોટ પાડવો છે. दिस वन? યસ સર. ओके ओके. ઓકે સર. થેન્ક યુ સર. Any doubt, any question, anybody? No doubt, sir. Okay. If you have no doubt, no